Hi guys, hello everyone. I'm sure if you are watching this video, you're one of the 397 people in my friend list. You must be someone I met recently, my school friend or a college friend or my relative. And while most of you all know me, I'm a shy person. I'm not so camera friendly, and creating vlogs is for sure not something that I do for a living. However, me and a few family members have recently got treated with COVID 19, and I have learned a lot through my journey, which I wanted to share with you all, and hoping that this video will benefit you and your close ones. Again, before I begin, just reiterating the fact that this video is specifically for these 397 people on my Instagram. And not just any other Gyan video on coronavirus. Also, I'm not a subject matter expert, but sharing this purely out of what I have experienced, so that you guys can benefit out of it, or जिसको भी ज़रूरत होगी शायद वो ये देख के कुछ उससे समझ पाए. आई एम कवरिंग दिस एंटायर थिंग इन four topics within this video. Mainly one, which is detection of the virus. Second, do's and don'ts, what you need to do, what you don't, medication and the right approach. And fourth one is the post COVID care. Yeah, so let me begin with this. So first one, detection of the virus. While you must be hearing a lot on national television, रोज न्यूज़ में चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं about the new strain being more powerful, upgrade हो चुका है previous strain से ज़्यादा. Well, that's completely true, and the sad part is virus upgrade हो गया, लेकिन हम ने टेस्टिंग का मेथड अपग्रेड नहीं किया. So we are still following the usual way for detecting the new virus, which is not the right way. Mostly when you start getting these symptoms like fever, loss of taste, smell, etc., you are suggested to get a RT-PCR done. That's the standard operating procedure. However, the new upgraded virus is not detected in RT-PCR at all. Also, the worst part is that the symptoms are also different for different people. In fact, there are cases where there have been no standard symptoms at all. Okay, and this is from my personal experience, since all of my family members had different symptoms at all. मुझे सारे symptoms थे और मेरे mother को कोई भी symptoms नहीं था. So this is from personal experience. Adding to this, the RT-PCR test takes around 3 to 4 days for the results to come currently, because of everybody getting hit with the virus. Everybody is trying to do the RT-PCR done, so there is a lot of stress on these labs, which is the reason why they are taking a lot of time. And technically this 3 to 4 days is enough for the virus to spread its wing, and 3 से 4 दिन आपको बहुत बीमार बना सकता है. एंड ऑब्वियसली आपके घर में भी ज़्यादा फैल सकता है, ज़्यादा लोगों में ये. सो लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन. HRCT, okay, which is basically a chest ka CT scan. Basically, the new virus does not spend a lot of time in the nose or throat. Unlike the previous version of it, it quickly enters your lungs in a matter of a day. Yes, that's right, in a matter of a day. And again, I'm not a subject matter expert here, but that's what has happened with me and my family members. So the first thing first, get a HRCT, basically a chest scan, done the moment you start getting your symptoms. The results may come in matter of hours. You can get to know how much corona has spread in your lungs in a score of 25. For example, if the score is around 7 to 8 out of 25, then you are still at a very nascent stage. ज़्यादा वायरस अंदर फैल नहीं चुका है, या निमोनिया ज़्यादा फैल नहीं चुका है अंदर. बट for example, if the score but if the score is around 14 to 15 out of 25, then matter is serious. Don't waste your time at home, get admitted. ओके, अगेन एज फैक्टर और ऑक्सीजन स्टेटस भी मैटर करता है, तो वो चीज़ें भी कंसिडर करनी है, जिसके ऊपर मैं अभी आऊँगा. सो नाउ दिस वाज अबाउट डिटेक्शन, एंड नाउ लेट्स लुक एट डूज एंड डोंट्स. अब समझ लो वायरस डिटेक्ट हो गया, ठीक है. अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो घर वालों से दूर हो जाओ, या घर वालों को दूर कर दो तुमसे.
ठीक है. सो वन ऑफ द थिंग्स आई एम रियली प्राउड अबाउट इज दैट द मोमेंट आई रियलाइज दैट 2 people इन माई फैमिली वर हैविंग दीज सिम्टम्स. आपको अजम्पशन करना है, ओके आपको अज्यूम करना है कि ओके अगर 2 लोगों को सेम सिम्टम्स आ रहे हैं, दोनों की सबके टेस्ट चले गए हैं मुँह के, और फीवर भी कंटिन्यू एक दिन के बाद दूसरे दिन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, अगर ये हो रहा है प्रोसेस, विच मीन्स 2 लोग तो इफेक्ट हो चुके हैं. क्विकली बाकी फैमिली मेम्बर्स को घर में से या तो दूर कर दो, या तो फिर अगर आपका घर ज़्यादा बड़ा है तो उनको आइसोलेट कर दो अलग से रूम में. आपका रूम पूरा अलग होना चाहिए और आप अलग एक रूम के अंदर होने चाहिए. अनफॉर्चुनेटली माई हाउस इज़ नॉट दैट बिग, हेंस आई हैड टू शिफ्ट माई डैड एंड माई सिस्टर टू अ होटल. इससे क्या होगा कि आप फोकस कर सकोगे पेशेंट पर और उनके ट्रीटमेंट पर, और जो बाधित नहीं हुए कोरोना से वो सेफ रहेंगे. ओके. बाद में घर पर भी क्वारंटाइन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स, दैट यू हैव अ बिगर हाउस एंड पीपल कैन स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर इन अ कम्प्लीटली सेपरेट रूम. अगर स्कोर कम है तो घर पर ही इलाज हो सकता है. फ़िलहाल हालत इतनी ख़राब है कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, तो सबसे पहले अपने फिजिशियन को कॉल करें और उनको बताओ कि आप पॉजिटिव हो. ठीक है. और वो आपको ब्लड टेस्ट करने को कह सकता है. आफ्टर HRCT ऑल्सो ही माइट आस्क यू टू डू अ ब्लड टेस्ट, जिससे कि उसको पता चलता है कि आपके बॉडी का स्टेटस क्या है और कितने पावर की दवाई दी जा सकती है. ठीक है. घर के ट्रीटमेंट के लिए भी फेविपिरावीर और ऐसे सारी दवाइयाँ होती है जिसके ऊपर मैं आगे आऊँगा. अब आपका अगर स्कोर ज़्यादा है, ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट एक ऑक्सीमीटर खरीद लो. ऑल यू नीड टू डू इज़ कीप चेकिंग द ऑक्सीमीटर फॉर योर ऑक्सीजन लेवल्स. ये इसलिए क्योंकि चेस्ट में जाने के बाद नया स्ट्रेन निमोनिया करता है. ओके. इससे लंग्स में पानी भर जाता है और आपको सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाएगी. डिपेंडिंग ऑन द एज फैक्टर अगेन, वेदर इफ़ यू हैव एनी लंग्स और हार्ट रिलेटेड एलिमेंट, इफ़ यू आर अ स्मोकर स्पेसिफिकली, थिंग्स कैन गो रियली वर्स्ट. और इसीलिए ऑक्सीमीटर घर पे रखना ज़रूरी है. इसको यूज़ करना एकदम आसान है. ऑल यू नीड टू डू इज़ पुट इट ऑन योर फिंगर. ओके. आई डो नॉट हैव इट करेंटली विथ मी. ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट पुट योर फिंगर इनसाइड द ऑक्सीमीटर एंड यू हैव टू वेट for the pulse to show. Okay, wait for a minute because then the pulse is exact, and once you get the pulse, you will see a score between, एक हेल्दी बंदे का स्कोर होता है 96 से 97 के बीच में, और अगर ये स्कोर ड्रॉप होके 94 के नीचे ड्रॉप होना शुरू, जैसे ही आपको पता चले कि आपका ऑक्सीमीटर स्कोर 94 के नीचे दिखा रहा है, do not at this point, don't waste your time, quickly run to the hospital, take the patient to the hospital and get him admitted because he needs oxygen. Okay. एंड आपको बिलीव नहीं करोगे 90% ऑफ द डेथ्स जो हो रही है वो टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचने की वजह से हो रही है. मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं व्हेन आई वाज विजिटिंग फॉर माय मदर. ऐसे पेशेंट्स भी देखे जो लिटरली उनको ऑक्सीजन लेवल 70 तक होने पर वो पहुंचते हैं, एंड बाय द टाइम वो प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन उनके नाक में वो जो पूरा इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगाते हैं वो लगाने तक उनका ड्रॉप होकर 60-65 तक चला जाता है. तो वो उतना टाइम आपको रुकना ही नहीं है. जैसे 94 के नीचे चला जाए आपका ऑक्सीमीटर वैल्यू, आपको तुरंत एक्शन करना है. ठीक है. नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी बढ़ जाएंगी. अब एडमिट कैसे हो, ओके. अभी बाकी स्टेट्स का मुझे पता नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक. वेल, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई कैन टेल यू अबाउट द प्रोसेस दैट वी फॉलो हियर. दिस प्रोसेस माइट डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. BMC मुंबई में BMC ने एक लिस्ट जारी की है जिसके हर एक वार्ड के हिसाब से वॉर रूम के नंबर्स पब्लिश किए हैं. ठीक है. आपको तुरंत ही आपके वार्ड के वॉर रूम में कॉल करना है और उन्हें बताना पड़ेगा कि यू आर कोरोना पॉजिटिव और योर फैमिली मेम्बर इज़ अ कोरोना पॉजिटिव और आपको एडमिट होने की बहुत ज़रूरत है. अपना स्कोर बताओ, अपना ऑक्सीजन लेवल बताओ, और अब पहले आंसर जो आपको मिलने वाला है वो है कि बेड अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी, और ऑक्सीजन तो अवेलेबल है ही नहीं कहीं पर भी. ओके. ये आपको आंसर मिलने वाला है. तो नाउ डोंट गिव अप एंड कीप कॉलिंग देम. ओके. ये BMC है, इधर ऐसे ही काम चलता है. आपको पता है, आप इतने साल से अगर मुंबई में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ऐसे ही काम चलता है. आपको कॉल करते रहना है, उनको परेशान करते रहो, उनको बताते रहो, उनको सारी सिचुएशन समझाओ. कीप
continuously keep calling them and tell them that the patient is losing his life. You have to help out and all that things. In fact, if you ask me personally, my mother is a doctor, but I had to still struggle around 4 to 5 hours to get a bed. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द बेड पार्ट, ज़रूरी नहीं है आपको बड़े हॉस्पिटल्स मिलेंगे. सिचुएशन इतनी ख़राब है कि कहीं पे जगह नहीं है, हमें सबको पता है ये. सो लेट्स फोकस. अगर छोटा हॉस्पिटल भी मिले, लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन मिल रहा है वहाँ, क्विकली पेशेंट को मूव करो और ऑक्सीजन दिलवाओ. ठीक है, डोंट वेट फॉर गेटिंग अ बेटर हॉस्पिटल और अ बिगर हॉस्पिटल. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटा हॉस्पिटल है, ज़्यादा फोकस करेंगे. ओके, अब बात करते हैं मेडिसिन की. जैसे ही आप हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाए, डिपेंडिंग ऑन हॉस्पिटल, आपको बोला जाएगा कि पेशेंट को रेमडेसिविर या फिर एक्टेमेरा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज टोक्लीजुमैब, लगेगा, वो लेके आइए. ओके, ये तुरंत आपको हॉस्पिटल वाले बोलने वाले हैं. अब कुछ बड़े गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये रेडीली अवेलेबल होता है, बट ये सारे बड़े हॉस्पिटल्स में हमेशा ही सारे बड़े हॉस्पिटल हमेशा ही फुल रहेंगे. सो छोटे हॉस्पिटल्स पेशेंट के रिलेटिव को ये लाने बोलते हैं. ओके, सो दोनों में डिफरेंस क्या है? Both these medicines are not part of a standard operating procedure to treat coronavirus. However, they are applicable in case to case scenario. Okay, if depending on your score, if you want और थोड़ा geeky knowledge अगर आपको चाहिए, तो Actemera, which is also known as tocilizumab, is given to patient who has a very high score, and what it does is it stops the spread of coronavirus then and there itself and doesn't let the virus to duplicate. Okay, timing for prescribing tocilizumab and selecting suitable patients for treatment is also an important question. The optimal time to prescribing tocilizumab is in the beginning of inflammation and first steps of dropping O2 saturation, but still accurate time in infection stage to start this drug is unclear. Similarly, remdesivir what remdesivir does is basically it helps you block the chain of the virus on a daily basis. Again, remdesivir works by interrupting the production of the virus. You must already have heard the coronaviruses, the genomes are made of ribonucleic acid, RNA से बनते हैं. So remdesivir interferes with one of the key enzymes the virus needs to replicate RNA. Okay, so this prevents the virus from multiplying. So basically, it is administered through IV. दोनों भी इंट्रावेन इंजेक्शंस है. रेमडेसिविर स्पेसिफिकली 6 वायल्स में जाता है, 2 वायल्स ऑन day 1 and rest of the 4 vials 1 each day. The patient needs to complete this course of 6 vials without a break. Otherwise, you will have to start the process again. Okay, all the previous vials will be wasted. And now comes the catch. रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है. ओके, सो नाउ आई एम नॉट श्योर व्हाट यू गाइज आर लिसनिंग ऑन टीवी. जो भी पॉलिटिक्स चल रही है ओवर रेमडेसिविर, उसके इफेक्ट सारी पब्लिक जानती है. द प्रॉब्लम इज पीपल आर एंडिंग अप बाइंग 4 to 5x the price of the original medicine. एक्टेमरा का एक वायल इज़ अराउंड 40 to 50,000, जो फिलहाल 1 लाख के आसपास ब्लैक हो रहा है. एंड रेमडेसिविर का 1 वायल इज़ अराउंड 4 to 5,000, जो फिलहाल 10 से 12,000 में एक वायल मिल रहा है. सो क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कहाँ से ख़रीदना है, और जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है माल दबा के बैठे हैं. ओके, एंड पता नहीं किसके इंस्ट्रक्शंस पे क्या है, उसमें मुझे जाना नहीं है. The focus of this video is on how I can help you to get this. Yeah, so एक ऑप्शन है मुंबई में जहाँ से मुझे रेमडेसिविर मिला था विद बिल, जो कि है मसीना हॉस्पिटल, दैट्स इन बाइकला. ओके, सो दे स्टिल हैव अ good amount of stock of remdesivir, which is आप लोगों को there's a process to get that medicine from there. You have to go and stand in a queue, get a token, and then finally they give you 1 vial of remdesivir. So the first day they'll give you 2, and then rest one day you'll have to go and get each day, since the patients are so many that they cannot give
all the 6 vials at once. So that's how it is. Again, one more thing I have managed to do is to source out a list of distributors of remdesivir in India. Sorry, but I have not foolproof this list, each and every distributor, but you can try your luck. So I'm gonna share this along with this video. One suggestion: don't sit at home trying to call people. You may lose very precious time. Instead, आपको अगर कहीं पे पता है कि यहाँ मिलता है, आप खुद जाओ, लाइन में खड़े रहो और ले लो वो पेशेंट के लिए, बिकॉज कॉल्स पे ये लोग एंटरटेन कभी नहीं करेंगे. तो कमिंग ऑन टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पोस्ट कोविड केयर. आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, please ensure that the patient is kept in a separate room. Okay, all together, completely separate with a door. ओके, उसको इंटरेक्ट करना ही नहीं है बाकी फैमिली मेम्बर्स से. और बाकी फैमिली मेम्बर्स, रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, एवरीबडी हैज़ टू वेयर अ मास्क ऑल द टाइम टू टेक दैट एक्स्ट्रा केयर एंड इंश्योर दैट everyone is safe. Again, eating utensils, clothes, other stuff of the patient from the room needs to be tackled, washed and taken care very cautiously, again to avoid spread of the virus within the family members. This must be followed at least 10 to 12 days. ठीक है. And just when the patient is completely fine, get a test done and then allow the person to socialize विद इन द हाउस इटसेल्फ. ओके, 10 से 12 दिन आपको रुकना है हॉस्पिटल से वापस आने के बाद, या अगर आप होम क्वारंटाइन है, जिस दिन से आपके सारे सिम्टम्स रुक गए, आपका बुखार रुक गया, सब कुछ रुक गया और आप एकदम परफेक्टली फाइन फील कर रहे हो, उसके बाद 10 से 12 दिन रुको. ठीक है. उसके बाद सभी लोग घर पर ही रहे, अपने आप को लॉक करके बैठ जाओ अगर आप कर सकते हो ऐसा तो, या फिर घर का जो भी सदस्य बाहर जाने वाला हो उसको 100% सुपर प्रिकॉशंस रहना है, और हो सके तो उसको अलग ही रखो क्योंकि वो अंदर बाहर करता रहेगा. सो कीप हिम अवे. एंड रेस्ट तो पूरे साल भर से आप हाथ धोना ये सब तो जानते ही हो. That's about it. I think the whole point of making this video was to ensure that at least अगर एक बंदे को भी मेरा ये वीडियो सुनकर या इसकी इन्फॉर्मेशन उसके कुछ काम आए तो I think it will be great. Thank you so much. Take care, stay safe, stay at home and God bless you all. Goodbye.